welcome back. And in this video, we'll be discussing the important questions of MCO 06 Marketing Management for this June exam. And we will only cover the important questions for this particular exam. And I would also advise you to join my membership where I will be explaining all the important questions of all the subjects of semesters live in live streaming. So I think that will help you to prepare well and score good for the exam. So let's start with unit 1 and let's see a few important questions from here. You should at any cost revise this one. These 5 philosophies of marketing management. ये question exams में काफ़ी time आता है. The second question from this unit, what are the different processes of marketing management, like how you will do marketing management, what are the steps involved in marketing management. Then you can also learn this topic, difference between selling and marketing. Very old topic, right from class 11 we are studying this. Then the different type of functions of marketing, because marketing management is a big concept and these are all the the functions of a marketing manager. So this question also you can go through. From unit 2, let's see, again marketing environment, both the environments micro and macro and their variables. You can get any one of them also. So it's a very common question because environment is common to almost all the MCOM subjects. And let's move on to unit 3. यूनिट 3 से आप कर सकते हैं MIS पे, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम पे. व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स टू डेवलप ए गुड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर ए कंपनी एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये दोनों क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. इसको अच्छे से रिवाइज करें इस क्वेश्चन को एंड समझने की कोशिश करें, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ये डिफरेंस भी आप कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम. ओके, एक और यहाँ पे क्वेश्चन है मार्केटिंग रिसर्च पे, वो भी एग्जाम्स में काफ़ी टाइम आता है. व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च. तो ये सारे पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने हैं अपने आंसर्स में कि हम लोग एक मार्केटिंग रिसर्च कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, क्या मतलब उसमें व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन बी टेकन टू अकाउंट. These are all the different processes or steps involved in the marketing research. Then unit 4, buying behavior. यहाँ से भी क्वेश्चन ऑलवेज एग्जाम्स में रहता है माय डियर फ्रेंड्स. एंड व्हाट आर दिस डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द परचेजिंग डिसीजन ऑफ द बायर्स. एंड ये चारों फैक्टर्स ही आपको अच्छे से लर्न करना है, साइकोलॉजिकल, पर्सनल, सोशल एंड कल्चरल. इसके अगेन सब फैक्टर्स हैं एंड दैट यू शुड रिवाइज फॉर द एग्जाम. Then the different stages or the different steps that a buyer take while taking purchasing decisions. How, like हम लोग कैसे परचेज करते हैं, कैसे कौन कौन से steps follow करते हैं. So this question also important one. Then we have unit 5. मार्केट सेगमेंटेशन से ऑलवेज क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स. एंड ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं लाइक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट पे, लेकिन आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर मार्केट सेगमेंटेशन. मार्केट सेगमेंटेशन को बहुत अच्छे से रिवाइज करें आप एग्जाम्स के लिए. ये शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग क्वेश्चंस कहीं पर भी स्ट्राइक कर सकता है ये क्वेश्चन. लाइक व्हाई कंपनी डज मार्केटिंग सेगमेंटेशन, देन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स और एसेंशियल्स ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन. And the different, ये question, this particular question, what are the different bases of marketing segmentation. This is one of the most important question from this. Okay, let's move on to unit 6, market targeting and positioning. यहाँ से भी question always रहता है friends exams में. And the different procedures of conducting market targeting. Market target जब करता है कंपनी तो क्या क्या steps, क्या process है उसके, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में रहता है ऑलवेज. लाइक दैट जब हम लोग कंपनी जब प्रोडक्ट को पोजीशन करती है मार्केट में तो क्या क्या स्टेप्स, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स दैट इट टेक्स. तो ये जो 3 स्टेप्स हैं, 3 मेथड्स हैं, लाइक कंपैरेटिव डिफरेंशिएशन एंड सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी. तो ये स्ट्रैटेजी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकता है. देन द नेक्स्ट यूनिट 7 की तरफ चलते हैं. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन पे है. एंड यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, दिस वन, द डिफरेंट चैलेंजेस
इन द मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज कि एज वी नो कि जो सर्विसेज होती हैं दे आर इनटेंजिबल इन नेचर एंड वी कैनॉट सी देम एंड व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस जितने भी सर्विस सेक्टर्स हैं उनके लिए क्या मेन इश्यूज रहता है फॉर द मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। ओके, यूनिट 8 में चलते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड दिस पर्टिकुलर फर्स्ट क्वेश्चन कि लाइक व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो ये 6 स्टेजेस होते हैं एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए एंड whenever a company wants to introduce a new product so it has to go through all these steps। तो इनको you need to expand these points। PLC पे आपको शॉर्ट नोट भी मिल सकता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है एंड दिस आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ओके, ये इसका डायग्राम, ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, व्हाई डू न्यू प्रोडक्ट्स फेल इन द मार्केट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में आता है। तो ये कुछ एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमेशा एग्जाम क्वेश्चन पेपर में ऑलवेज दे आर देयर इन द क्वेश्चन पेपर। ओके, नेक्स्ट यूनिट ब्रांडिंग। ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रांडिंग स्पेशली ब्रांडिंग एंड लेबलिंग, ये दो कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रांडिंग इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसके लाइक व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ब्रांड, इंडिविजुअल एंड अम्ब्रेला ब्रांडिंग का डिफरेंस, this is also very important one and packaging, what are the different functions of packaging, ये भी आप रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम्स के लिए, different functions of this thing packaging, labeling, why it is important, why company or why the organizations do labeling of the product। Then comes unit 10, objectives and method of pricing and from this particular chapter this what are the different factors that affect the pricing strategy or pricing of a product। whenever a company wants to do the pricing of its product, so what are the different factors it takes into account and what are the different objectives of pricing। जैसे कि हम लोग जानते हैं profit is not the only the only object of the company, तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो आपको डिटरमाइन करने हैं। देन व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल फॉर दिस प्राइस डिटर्मिनेशन। तो मैंने यहाँ पे 3 मेथड है एंड अगेन इसके और भी सब पॉइंट्स हैं जो आपको इस आंसर के लिए लिखने हैं। ओके, एंड जो न्यू व्यूअर्स जो जिनके पास में मेरे स्टडी मटेरियल नहीं है, दे कैन ऑल्सो बाय माई स्टडी मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन and this particular question, factors that should be kept in mind before determining the price of a product। so this question is also very common। यूनिट 11 की बात करते हैं, प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजीज एंड यहाँ पे ये क्वेश्चन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ज्योग्राफिकल प्राइसिंग। ये 5 मेथड्स हैं जिनको आपको डिस्क्राइब करना है आंसर्स में कि लाइक ज्योग्राफिक आई मीन डिफरेंट नेशंस या डिफरेंट स्टेट्स में जब मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कंपनी चालू करती है तो क्या मेथड्स ऑफ प्राइसिंग होती है वहाँ पे। एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एग्जाम। एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्राइसिंग इन न्यू प्रोडक्ट। व्हेनेवर द कंपनी इंट्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट तो उसकी तो प्राइस होती है, लेकिन क्या क्या स्ट्रैटेजी कंपनी यूज़ करती है फॉर द प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। प्राइसिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, प्राइसिंग ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट, दोनों में डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये भी आप कर सकते हैं, मार्केट स्ट्रीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। देन वी हैव 12 रेगुलेशन। यहाँ पे आप रीसेल प्राइस मेंटेनेंस पे जितना भी आपके पास में नोट्स हैं ज़रूर से इसको तैयार करें, रीसेल प्राइस मेंटेनेंस पे। ओके, नेक्स्ट यूनिट में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से रिवाइज करें। एंड व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड the factors that affect the choice of the channel of distribution of different products like FMCG or industrial product or consumer product, so like that। Then discuss the various steps involved in the channel management। तो ये channel of distribution के management पे है, so you can revise this question also। Conflict, channel conflict, you must revise this question at any cost। The different types of channel conflict, what are the consequences and what measures that the company takes to to resolve channel conflict, very important question।
ओके, यूनिट 14 मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। यहाँ पे जैसे जो मिडिलमैन है, मिडिलमैन के फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिडिलमैन, उनके रोल्स, ये आप कर सकते हैं लर्न। यूनिट 15 में मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स पे है। यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस ऑफ लॉजिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स, ये बिल्कुल करना है। टोटल सिस्टम अप्रोच एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, ये दोनों टॉपिक पे जितने भी आपके पास पे नोट्स हैं, रिवाइज दोज प्रॉपरली। ओके, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन दैट द कंपनी यूजेस। इसके प्रोसीड्योर्स फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम। ओके, द नेक्स्ट वन दैट आई शुड, एक आप शॉर्ट नोट के लिए ये क्वेश्चन कर सकते हैं IMC पे, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जो आपको एग्जाम्स में मिल सकती है। दैन यूनिट 17 में पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन पे है, एंड व्हाई दिस पर्सनल सेलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू a company, to the customers, and is personal selling, like what are the different situations where personal selling is required, and this particular question, what are the different steps involved in the personal selling process, ये question इस chapter में सबसे important है। okay, qualities of a good salesman, more or less हम लोग लिख सकते हैं अपने words पे, no problem with that। सेल्स प्रमोशन पे थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, ये भी आपको मस्ट करना है, एंड नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जानते हैं, पहले से पढ़े हुए हैं इसके बारे में। एडवर्टाइजिंग, इसकी इंपॉर्टेंस, मेरिट्स, डिमेरिट्स, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी का डिफरेंस, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ और डिसीजंस टू बी टेकन बिफोर एन एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजिंग दोनों को ही अच्छे से आपको रिवाइज करना है फॉर द एग्ज़ाम। नेक्स्ट यूनिट 19 में एमर्जिंग इश्यूज ऑफ मार्केटिंग, जहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पे तो 100% आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। रिलेशनशिप मार्केटिंग पे, व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग, सो दैट्स इंपॉर्टेंट। ई मार्केटिंग पे कर सकते हैं, मार्केटिंग ऑन द इंटरनेट, तो ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है। ग्रीन मार्केटिंग पे आप कर सकते हैं, व्हाई, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग एंड इसके इम्पॉर्टेंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। सोशल मार्केटिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ग्रोइंग कॉन्सेप्ट है, एंड व्हाई इट इज़ गेनिंग इम्पॉर्टेंस आपको पूछ सकता है। एंड दिस 4 P's ऑफ सोशल मार्केटिंग, तो ये भी कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है। रूरल मार्केटिंग पे अभी हम लोगों ने, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट बनाया था रूरल मार्केटिंग पे, एंड इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स मिल सकता है। शॉर्ट नोट्स में भी आप इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, दीज आर फ्यू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स दैट you should revise at any cost for this exam. So I hope you would have, this video is going to be very useful to you and will help you in the preparation. So thank you very much for watching this video.